Good morning, students of class 5. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your English grammar books and turn to page number 62 as I'll be continuing with Unit 14 articles. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 62 as I'll be continuing with Unit 14 articles. Students, in my last video, I had explained about the definite article the and the indefinite articles am. Now students, today I'll be starting with exercise 1 given on page number 62. But before I start with this exercise, let's revise articles. Students, article is a word that comes before a noun. And articles are used to point out the people or things. Articles are used before noun and they pinpoint people or things. And there are two kinds of article. The indefinite articles means a or n, and the definite article the. And in my last videos, I had explained the use of a and the. And today I'll be starting with exercise 1. But we need to keep in mind, students, till now we had learned the use of a and n depending upon the words starting from consonant or vowels. अभी तक हमने पढ़ा था कि जो words consonant से start होते हैं उनके आगे हम a लगाते हैं, जो vowel से start होते हैं उनके आगे हम n लगाते हैं. But now you need to keep in mind, you need to read that word loudly and you need to understand the sound. If the word starts with U, though it's a vowel, but the sound is of Y, so we'll be using a before it, not N. Fine? The same way, if the word is written with, it starts with a consonant, and if the sound is of vowel, then we'll be using N. So keeping this in mind, we'll be doing exercise 1 given on page 62. That is, fill in the blanks with a or n. Now we need to fill in the blank either with a or n. Fine. Now students, the first one is dash alligator is dash dangerous reptile. This is the first one of the fill in the blanks exercise 1. Now, dash alligator. Now we need to look at the noun following the blank. Dash के बाद बेटा alligator लगा है. Alligator और alligator किससे start हो रहा है? A से, which is a vowel. और sound भी हमको ए का आ रहा है ना? So we'll be using N. An alligator is dash reptile. अब is dash reptile. कैसा reptile है? Sorry, dash dangerous reptile है ना? तो dangerous reptile में जो dangerous है, that is starting from D, which is a consonant. Sound भी D का है और spelling भी consonant की है. So we will be using A in the second blank. So our sentence will be, an alligator is a dangerous reptile. Fine. Alligator
में ए से स्टार्ट हो रहा है, ए इज अ वॉवल एंड साउंड भी वॉवल का आ रहा है, कॉन्सोनेंट का नहीं आ रहा है. सो हमने कैसे स्टार्ट किया, एन से, एंड वी हैव रिटन द A of N capital. Why? Because here we are starting the sentence with N. So we need to keep in mind that whenever you begin a sentence, whenever you start a sentence, you always begin with a capital letter. तो हमने यहाँ पे N का A capital किया है. Why? Because we are starting the sentence. और second blank में dangerous reptile के पहले हमने क्या यूज किया है, अ, बिकॉज डेंजरस में ड का साउंड है और स्पेलिंग भी डी, डी इज अ कॉन्सोनेंट. सो फर्स्ट वाले में स्टूडेंट्स प्लीज राइट एन एंड एंश्योर दैट A of your N is capital, and in the second blank write A. So our sentence will be, an alligator is a dangerous reptile. Okay, now the second one. Always keep dash dictionary in your bag. Now, the second sentence is always keep dash dictionary in your bag. Now, after the blank, the word dictionary is there. Noun, जिसके लिए हमको आर्टिकल ए और एन में से बेटा एक यूज करना है. अब the word dictionary, the spelling of dictionary starts with D, which is a consonant, and the sound is also of D, the consonant sound. So we'll be writing A in this blank. So our sentence will be, always keep a dictionary in your bag. We have used a in this. Why? Because this points out the noun dictionary, whose spelling starts with the consonant D and the sound is also of D. So we'll be using a in the blank. So I hope students you have written the second sentence also. You must have written A in the second blank. The first one is, an alligator is a dangerous reptile, and the second sentence is, always keep a dictionary in your bag. Now, the third one. This is dash important question. Now, a third sentence is, this is dash important question. Now, you need to use the article for the noun important question. Now, the spelling of important starts with I. I is a vowel. Vowel से start हो रही है spelling, and the sound is also of the vowel. That is important. So, we have to use N for the noun whose sound is also of the vowel and the spelling also starts from the vowel. So, we will be writing N. So, this is an important question. This is an important question. The first one is, an alligator is a dangerous reptile. We need to use N in the first blank and A in the second blank. यहाँ पे alligator A से start है, जो कि vowel है और sound भी A का है. So हमने N use किया. Whereas in the second blank, जो अ है, हमने किस noun के लिए use किया? Dangerous reptile के लिए. और dangerous D starts with a consonant and sound भी consonant का है. So we have used A.
Whereas in the second one, always keep dash dictionary in your bag. Dictionary की spelling D से है और sound भी D consonant का है, D का है ना? So हमने क्या use किया? A. Third में, this is an important question. Important spelling I से है, which is a vowel, और sound भी vowel का है, तो हमने क्या use किया? N. Fine. Now the fourth one. He wants dash empty carton for craft activity. Okay, this is the fourth one. He wants dash empty carton for craft activity. Here जो हमें article use करना है वो किस noun के लिए use करना है? Empty carton. So we look at the spelling of empty. Empty की spelling E से start होती है. E क्या है? Vowel है. और sound भी किसका आ रहा है? Vowel का. Empty. Empty sound is also a vowel and the spelling also starts with vowel. So we will write N. So he wants an empty carton for craft activity. Fine. So you need to keep in mind students कि up की जो spelling है ना, वो भी देखनी है और आपको sound भी देखना है. अगर spelling भले ही किसी भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है लेकिन वावल का साउंड आ रहा है, तो जिसका साउंड आएगा उस हिसाब से हम ए और एन लगाएंगे. दिस यू नीड टू कीप इन माइंड. फाइन. नाउ द सिक्स्थ वन, सॉरी द फिफ्थ वन. दे waited for dash ambulance and dash doctor to take care of the patient. Now, the fifth one. They waited for dash ambulance. यहाँ पे हमें आर्टिकल किस नाउन के लिए यूज करना है? एम्बुलेंस के लिए. तो हम इसको देख के आर्टिकल यूज करेंगे. एंड डैश डॉक्टर टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट. और सेकेंड ब्लैंक पे हमारा नाउन क्या है? डॉक्टर है, जिसके लिए हम आर्टिकल लगाएंगे. सो दे वेटेड फॉर डैश एम्बुलेंस. और बेटा ये एम्बुलेंस के लिए आपको इसकी स्पेलिंग देखनी है और साउंड देखना है. नाउ द स्पेलिंग ऑफ एम्बुलेंस स्टार्ट्स विथ ए विच इज अ वावल, और साउंड भी किसका आ रहा है? वावल का आ रहा है. सो हम क्या यूज करेंगे? एन. दे वेटेड फॉर एन एम्बुलेंस एंड dash doctor. Now when you look at the spelling of doctor, अब देखोगे D से स्टार्ट हो रही है. D क्या है? कॉन्सोनेंट है. और इसका जो साउंड है वो भी क्या है? कॉन्सोनेंट का है. तो हम क्या लगाएंगे डॉक्टर के लिए? So our sentence will be they waited for an ambulance and a doctor to take care of the patient. So students, please write N in the fifth questions first blank, fifth sentence first blank, and in the second blank of the fifth sentence. So they waited for an ambulance and a doctor to take care of the patient.
आपको फिफ्थ सेंटेंस में फर्स्ट ब्लैंक पे यू नीड टू पुट एन, and in the second blank you need to put A. Fine. So I hope all of you have written these 5 sentences. You must have completed the fill in the blanks in your book. Students, please check once again, and then I'm going to erase it. Please check that whether you have filled the blanks with the correct article or not. Then I'm going to erase and write the 6th one. So the first one is, an alligator is a dangerous reptile. Second, always keep a dictionary in your bag. Third, this is an important question. Fourth, he wants an empty carton for craft activity. Fifth, they waited for an ambulance and a doctor to take care of the patients. So I'm sure all of you must have written the blanks of these 5 sentences, students. Now I'm going to erase this and write the 6th one. The 6th one. I met dash Indian singer and dash European dancer. Now, the 6 sentences. I met dash Indian singer and dash European dancer. Now, there are 2 blanks in this sentence. In the first blank, हमें आर्टिकल किसके लिए बेटा यूज करना है? इंडियन सिंगर, ये हमारा नाउन है और इसके लिए हमें आर्टिकल यूज करना है. और सेकेंड ब्लैंक में हमको किसके लिए आर्टिकल यूज करना है? यूरोपियन डांसर. फाइन. नाउ वी लुक एट द फर्स्ट नाउन, दैट इज इंडियन सिंगर. नाउ स्टूडेंट्स, इंडियन, द स्पेलिंग स्टार्ट्स विथ आई. जो आई क्या है? वावल है. एंड द साउंड इज ऑल्सो ऑफ वावल. साउंड भी वावल का है और स्पेलिंग भी वावल है. सो विल बी यूजिंग एन, क्योंकि हम एन किसके साथ यूज करते हैं? जितने भी वर्ड्स जो वावल से स्पेलिंग स्टार्ट होती है और जिनका साउंड भी वावल का होता है. फाइन. नाउ आई मेट एन इंडियन सिंगर एंड यूरोपियन डांसर. नाउ सेकेंड वाला जो हमारा नाउन है, जिसके लिए हमें आर्टिकल फिल इन द ब्लैंक में लिखना है, दैट इज यूरोपियन डांसर. फाइन. नाउ अब आप देखो, ये जो स्पेलिंग है बेटा यूरोपियन की, स्टार्ट किससे हो रही है? ई से हो रही है. ई क्या है? ई एक वावल है. फाइन. बट जब हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो हम यूरोपियन तो नहीं बोल रहे हैं, हम इसको क्या बोल रहे हैं? यूरोपियन. हम इसको क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं? यूरोपियन. फाइन. हम इसको क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं बेटा? यूरोपियन. फाइन. अब बेटा यूरोपियन में किसका साउंड आ रहा है? साउंड किसका आ रहा है इसमें? इसमें साउंड आ रहा है वाई का. अब इसी वर्ड को मैं आपको बेटा हिंदी में स्वर और व्यंजन के हेल्प से भी समझाना चाहती हूँ. सो आई वांट दिस कंसेप्ट टू गेट क्लियर टू यू. अब बेटा अगर आप इसको हिंदी में देखोगे तो आपका जो स्वर है अ आ ई ए आई ओ औ, ये सारी मात्राएं, इसका साउंड आ रहा है इसमें, कि जो व्यंजन है क ख ग घ वाले, उसमें ये य का साउंड आ रहा है. किसका साउंड आ रहा है बेटा? य का.
है ना। आप इसको स्वर व्यंजन के ढंग से भी समझोगे तो भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जिन वर्ड्स को हम आप इंग्लिश में बोल के देखो और दिमाग लगाओ कि इसमें कोई भी स्वर का अगर साउंड आ रहा है तो वो क्या होगा, उसमें हमें एन लगाना है। बट अगर व्यंजन है ना, य, वाई, वाई क्या है, कॉन्सोनेंट है, और इसमें साउंड तो हम हिंदी में भी यूरोपियन लिखते हैं तो य से लिखते हैं, है ना, यूरोपियन, य, है ना, व्यंजन य लगता है। तभी मैंने इसलिए आपको वाई का साउंड से समझाया है कि अगर आप यूरोपियन, वाई का साउंड आ रहा है, भले ही स्पेलिंग ई से, वावल से है, तो ऐसे वर्ड्स बेटा कि जिनकी स्पेलिंग भले ही वावल से स्टार्ट हो रही बट उनमें साउंड जो है कॉन्सोनेंट का आ रहा है। वाई क्या है, वाई तो कॉन्सोनेंट है, वाई तो वावल नहीं है। तो ऐसे वर्ड्स के लिए हमको जो साउंड हमको सुनाई देता है ना, जो हम बोलने पे जो साउंड भी आपको लगता है कि साउंड जिसका आ रहा है, तो साउंड के हिसाब से हम आर्टिकल फिल करेंगे। यूरोपियन में साउंड किसका आ रहा है, वाई का आ रहा है, इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो लोग बिना सोचे बिना समझे उसमें एन लिख देंगे, लेकिन इसमें एन हमको नहीं भरना है। क्यों नहीं, वाई वी डू नॉट वांट टू यूज एन इन दिस, बिकॉज यूरोपियन की स्पेलिंग दो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ई विच इज अ वावल, बट व्हेन वी read this word, when we speak this word, we speak loudly, यूरोपियन साउंड है वो कहीं से भी ई का साउंड नहीं आ रहा है ना, य का साउंड आ रहा है, वाई का साउंड आ रहा है ना, य वाई, है ना। सो वाई का साउंड आ रहा है, इसलिए हम इसमें क्या फिल करेंगे, ए करेंगे। फाइन। सो ये आपको समझना बहुत जरूरी है आर्टिकल्स में कि स्पेलिंग भले वावल से स्टार्ट हो रही है, लेकिन जो साउंड अगर कॉन्सोनेंट का आ रहा है तो हम उसमें क्या भरेंगे, साउंड के हिसाब से आर्टिकल भरेंगे। साउंड किसका आया, वाई का आया, इसलिए हमने उसमें ए भरा क्योंकि वाई तो एक कॉन्सोनेंट है। सो आपको अभी तक जूनियर क्लासेस में आपने सीखा कि जो स्पेलिंग्स में वावल से स्टार्ट होते हैं, आंख बंद करके उसमें आप क्या लिख दोगे, उसमें आप एन लिख दोगे, और जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उसमें आप ए लिख दोगे। बट अभी आपको ये समझना जरूरी है कि स्पेलिंग भले उनकी एक वावल से स्टार्ट हो रही है, बट जो साउंड आ रहा है उसके हिसाब से हमको आर्टिकल उसमें फिल करना है। फाइन। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड कि अभी आपको स्पेलिंग नहीं, उसका साउंड पकड़ना है फॉर फिलिंग द आर्टिकल्स। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. So please write a before European. Now, the seventh one. He took dash or and dash half to reach the venue. Now, the seventh one is he took dash r and a dash half to reach the venue. अब यहाँ पे जो दो नाउन्स हैं जिनके ब्लैंक्स हमको दिए, फर्स्ट नाउन है आर, है ना, फर्स्ट नाउन क्या है हमारा, आर है, और सेकंड नाउन हमारा क्या है, हाफ। अब इन दोनों के लिए हमको आर्टिकल फिल करने हैं ना। अब ये जो है बेटा, ये जो आर की स्पेलिंग है, इसमें स्टार्टिंग किससे हो रही है, एच से हो रही है, HOUR। फाइन। आर की स्पेलिंग में एच जो है, एच क्या है, साइलेंट। हम इसको हावर तो नहीं प्रोनाउंस करते हैं, हम इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, आर। व्हाट डू वी प्रोनाउंस चिल्ड्रन दिस एज, आर। हम इसको आर प्रोनाउंस करते हैं, एच साइलेंट है। सो मैंने अभी आपको जैसे ऊपर में बताया था कि यूरोपियन की स्पेलिंग भले ही वावल से है, लेकिन जो साउंड आएगा उसके हिसाब से हमको आर्टिकल फिल करना है। सेम वे आपको अगर
स्पेलिंग भले कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है, कॉन्सोनेंट एच है ना, लेकिन हमारा जो साउंड है वो किसका आ रहा है, आर, अ का साउंड आ रहा है, AEIOU, ए का साउंड आ रहा है ना, इसमें साउंड ए का आ रहा है, तो हम इसमें क्या भरेंगे बेटा, हम हमेशा इसके पहले एन भरेंगे, कभी भी आवर के साथ हम ए नहीं यूज करेंगे। दो दी स्पेलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम एच, वी नीड टू कीप इन माइंड इसमें एच का प्रोनाउंसिएशन जो है वो साइलेंट है ना, आवर में एच साइलेंट होता है, उसका कोई साउंड नहीं, साउंड किसका आ रहा है, ओ का आ रहा है, आर है ना, साउंड किसका आ रहा है, आर, ओ का साउंड आ रहा है, और ओ क्या है, वावल है, तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे बेटा, एन। सो ही टुक एन आर, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट एज आर। कभी भी बेटा इसको हावर नहीं पढ़ना, अगर आप जैसा पढ़ोगे तो गलती करोगे तो आपका गलत आर्टिकल हो जाएगा, सो योर प्रोनाउंसिएशंस नीड टू बी एक्यूरेट, फाइन। सो ही टुक एन आर एंड डैश हाफ। अब यहाँ पे जो हाफ की स्पेलिंग है, हाफ, हम इसको हाफ नहीं बोल रहे हैं, हम इसको क्या बोल रहे हैं, हाफ, ह एच का साउंड आ रहा है, हाफ, स्पेलिंग भी एच से है एंड साउंड भी हाफ है ना। नाउ यू लुक एट, है ना, HALF इज हाफ, किसका साउंड आया, एच का साउंड आया है ना, एच का साउंड आया, स्पेलिंग भी एच से है, इसके आगे हमने क्या भरा, ए, बिकॉज ए हम उन वर्ड्स के लिए यूज करते हैं जिनकी स्पेलिंग इज ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉन्सोनेंट एंड साउंड भी कॉन्सोनेंट का है, बट अगर स्पेलिंग कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है बट साउंड अगर वावल का रहा तो आपको साउंड के हिसाब से आर्टिकल फिल करना है। सो बोथ दी स्पेलिंग्स they are starting with H, but then you see in one spelling H is silent, you do not pronounce H in the word R, है ना, तो हम इसको R ही बोलते हैं, H साइलेंट होता है, इसलिए हमने जो साउंड के हिसाब से हम आर्टिकल फिल करेंगे, फाइन। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Now, I'm sure all of you must have fill in the blanks for these two sentences, students. Now I'm going to erase this and write the next one. बेटा ये याद रखना है कि स्पेलिंग भले ही कॉन्सोनेंट या वावल से हो, जिसका साउंड आ रहा है उसके हिसाब से, साउंड के हिसाब से आपको आर्टिकल फिल करना है। Now, the 8 sentences. She has dash foreign university degree. Now, she has dash foreign university degree. Now जो नाउन जिसके लिए हमें आर्टिकल फिल करना है दैट इज फॉरेन यूनिवर्सिटी, है ना, फॉरेन यूनिवर्सिटी डिग्री, दिस इज द नाउन फॉर विच वी नीड टू फिल द आर्टिकल। अब हम देखेंगे फॉरेन, द स्पेलिंग इज स्टार्टिंग विथ F which is a consonant and besides that the sound is also of F, साउंड भी F का है और स्पेलिंग भी F की है, तो हम इसमें क्या भरेंगे, कॉन्सोनेंट का साउंड और स्पेलिंग भी कॉन्सोनेंट की F की है, तो हमने इसमें क्या यूज किया, A। शी हैज अ फॉरेन यूनिवर्सिटी डिग्री, स्पेलिंग भी कॉन्सोनेंट से है एंड प्रोनाउंसिएशन भी कॉन्सोनेंट का, स्पेलिंग भी F से स्टार्ट हो रही विच इज अ कॉन्सोनेंट एंड जो साउंड है वो भी किसका आ रहा है, F का, विच अगेन इज अ कॉन्सोनेंट। So write A in the 8th blank. Now the 9th one. She has dash American University
degree. Now, the ninth blank है. She has dash American University degree. Now the noun for which we need to fill in the article is American University degree. Now, American, the spelling of American starts with A, which is a vowel, and this sound is also of a vowel. So we will use an in the ninth blank. तो क्या हो जाएगा? She has an American University degree. Fine. So I'm sure students, you all must have completed and understood these 9 sentences of exercise 1 of articles, that is fill in the blanks with A or N. And you need to keep in mind that though the spelling, it may start from a consonant or vowel, किसी से भी spelling start हो, but आपको article किस basis पे भरना है, on the basis of the sound. Fine. So students, that's all for today. Thank you students. Have a good day ahead.